چین نے کسی تحفظات کے بغیر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کی دورے سے واپسی پر بریفنگ، کہا چین نے اقوام متحدہ میں اپنے نمائندے کو مشاورت کا بھی کہہ دیا۔ چین کشمیر کو متنازع علاقہ اور بھارتی اقدامات کو یک طرفہ سمجھتا ہے۔ بھارتی اقدامات سے انسانی حقوق کی مزید پامالی کا خدشہ ہے۔ بھارتی اقدامات پر تشویش نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ امریکی رکن کانگریس تھامس اوازی کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، مائک پومپیو کو خط لکھ دیا، کہا امریکہ کشمیریوں کے معاملے پر کیا کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا مظاہرہ، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ انٹرنیشنل پروفیشنل کانفرنس کا بھارت کے خلاف مذمتی اجلاس، علماء کرام، ڈاکٹرز، تاجر اور دیگر شخصیات شریک۔ یورپ بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری اگست کو یوم سیاح کے طور پر منائیں گے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کا پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے نام اہم پیغام۔ بھارتی سکھ بھی مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں کے ہم نوا بن گئے۔ لندن میں سکھوں کی سب سے بڑی تنظیموں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کشمیر کی آزادی کے ساتھ اب خالصتان بھی آزاد ہو کر رہے گا۔ برمنگھم، لیڈز، لوٹن، گلاسگو میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے مودی سرکار کے خلاف مظاہرے، کشمیر کی غیر قانونی تقسیم پر مودی کی مذمت، اب بھارتی کونسلیٹ کے سامنے آزادی کشمیر کے نعرے۔ موسلا دھار بارش بھی بریڈ فورڈ کے پاکستانیوں کو بھارت کے خلاف مظاہرے سے نہ روک سکی۔ بچے، خواتین بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج، فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ نیو یارک، پیرس، فن لینڈ، ہیوسٹن کی فضاؤں میں بھی بھارت مخالف نعروں کی گونج۔ پاکستانی اور کشمیری مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام پر برہم، کہتے ہیں بندوق کی نوک پر کشمیر حاصل کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے لندن میں معروف ڈیولپرز کا آگاہی سیمینار، بلو اوشن اور ایرونکس ڈیولپرز کی تقریب میں فلم سٹار ماہرہ خان اور بلال اشرف کی خصوصی شرکت شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ عظیم ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ مودی سرکار کے منہ پر تمانچہ، بھارت کا حقیقت پسند طبقہ حقائق سامنے لانے لگا ہے۔ بھارتی فوج انسداد عسکریت پسندی آپریشنز کے علاوہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سابق بھارتی فوجی، مصنف اور صحافی پراوین ساہنے کا ٹویٹ، لکھا ہم نے اپنی فوج کو دور جدید کی جنگ کے لیے ناکارہ بنا دیا، آج ایک دور جدید کی جنگ ہمارے چہرے کو گھور رہی ہے۔ مودی حکومت پر پاکستان کے ساتھ معنی خیز گفتگو کے لیے چین اور روس کا دباؤ ہے۔ روس اور چین اعتماد سازی نہیں، مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ مودی حکومت کے لیے جلد مذاکرات کا آغاز کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ آج ایک اور جدید جنگ ہمارے چہرے کو گھور رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر سپہ سالار نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا بڑی قربانی ہے، اپنے شہداء کے اہل خانہ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقاتیں، لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ، لیفٹیننٹ کرنل وسیم حیات، سپاہی غلام رضا کے گھروں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ بھی ہمراہ تھیں۔
ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकातें की और शहीदों की कुर्बानियों को सराहा। सिपा सालार ने कहा कि वतन की दिफा के लिए जान का नजराना पेश करना बड़ी कुर्बानी है। शोहदा के अहले खाना का एहसान कभी नहीं उतार सकते। अहले खाना से राब्ते में रहना और फलाह के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग 7 जून को शिमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम जून को आर्मी एविएशन के रावलपिंडी तैयारा हादसे में जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही गुलाम रजा ने 1 मार्च को कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देते शहादत पाई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई और फजा भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। Freedom for Kashmir! Freedom for Kashmir! Freedom for Kashmir! Freedom for Kashmir! आर्टिकल 370 की मनसूखी और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा। लंदन भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई और भारत के नाजायज इकदामात की मजम्मत की। मुजाहरे में PPP की मुकामी क़यादत, तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। मुकर्रीन ने कहा, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ पीपल्स पार्टी हमेशा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ शाना बिशाना मौजूद है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारत आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करे और जल्द अज जल्द अपनी फौज को मकबूजा कश्मीर से बाहर निकाले। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पे ये जो मुजाहरा आज इंडियन हाई कमीशन के बाहर रखा जा रहा है, बरतानिया की तमाम ब्रांचेज जो हैं तमाम शहरों से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ये मैसेज दे रही है कि ये मोदी के जो इक़दाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं उसकी भरपूर तरीके से मुज़ामत की जा रही है। तमाम मुस्लिम ममालिक को इस चीज़ के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए और दे शुड शो देयर सॉलिडेरिटी, और जो बिकॉज इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो UN है उसको जो है इस मामले को टेक ओवर करना चाहिए। अभी जो कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है बीइंग कश्मीरी, मुझे बहुत अफसोस है और बहुत तकलीफ है इसकी कि वो मुसलमानों को इस तरह उनसे ज्यादती कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बंदूकों मार रहे हैं, उन्होंने उस पर एक किस्म का कब्ज़ा कर लिया है। तो एज ए कश्मीरी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग दूसरे इस्लामी ममालिक से मिल के वो इसको हम किसी बड़े फोरम पे लगे जाएं। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि वो कश्मीरियों के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे और 15 अगस्त को भारतीय हाई कमीशन के सामने एक बार फिर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें तमाम कम्युनिटीज शरीक होंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुल जमाती मजम्मती इजलास बुलाया, जिसमें उलमा, डॉक्टर्स, ताजिर बरादरी और हर मुख्तलिफ फिक्र के ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। और भारत के नापाक अज़ाइम की मजम्मत की तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट। लंदन में इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास बुलाया गया, जिसमें उलमा, कानूनदान, डॉक्टर, ताजर और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की और आर्टिकल 370 की मनसूखी और भारतीय मुजालम की शदीद मजम्मत की। चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल और इजलास के ऑर्गेनाइजर अमजद सईद ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाना है। मेन मकसद यही है कि हम सब लोग मिलकर इसको प्रॉब्लम को एड्रेस करें और हम अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी फुल सपोर्ट का, कश्मीरी भाइयों को अपनी फुल सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं। हम उनके साथ शाना बशाना है। हम इस आर्टिकल को जब तक ये दोबारा से अपनी असल पोजीशन पे नहीं जाएगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तकरीब से बैरिस्टर राशिद असलम, चौधरी दिलपजीर, इलामा गुलाम रबानी अफगानी और दीगर ने भी खिताब किया और भारतीय गुंडागर्दी की मजम्मत की। ये जो मोदी हुकूमत ने 370 और 35A ख़त्म किया है, ये मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है और आम लोगों को चाहिए कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के जो MP हैं उनसे हमारी मीटिंग होनी चाहिए। कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों का फूड जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा, जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए कश्मीरी के, जिस तरह आज ये हाईलाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आज हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है, ये भी नॉन पॉलिटिकल है। मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, यहाँ पे सारी पार्टियाँ मौजूद हैं। जैसे कि हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि सैटरडे वाले दिन को
इंडियन हाई कमीशन के बाहर 1 बजे बहुत बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है। उसकी मैं तमाम जितने यहाँ पर दोस्त अहबाब उनको दावत देता हूँ कि उसमें अपना भरपूर शिरकत करें और अपनी सॉलिडेरिटी जो है कश्मीरी भाइयों के साथ करें। मोदी सरकार का हालिया इक़दाम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार होने को न सिर्फ बेनकाब कर रहा है, बल्कि उन्होंने जो सेकुलरिज़म का झूठा लिबादा उड़ा हुआ था, उसके नीचे से जो हिंदुआना तासुब है वो अपने पूरे ताफ़ुन के साथ उसका चेहरा बेनकाब हुआ है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। भारत ताकत के जोर पर कभी भी कश्मीरियों के बुनियादी हकूक नहीं छीन सकता। पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस अहम मसले पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। लॉर्ड नज़ीर अहमद का पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के नाम अहम पैगाम। यूरोप भर में भारत की यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। 15 अगस्त को एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से अपील की कि इन मुजाहरों को कामयाब बनाए। मजीद उनका क्या कहना था आप भी जानिए। हर साल की तरह जिस तरह पहले भी हम 15 अगस्त को हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस डे को हम ब्लैक डे बनाते हैं, इस साल भी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप, हम पूरे यूरोप के अंदर पेरिस में इंडियन हाई कमीशन के बाहर, मिलान में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन के बाहर, फ्रैंकफर्ट में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर ये मज़ारा जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी वहाँ पे तशरीफ़ लाएं। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इम्पोर्टेंट, कश्मीर पीस फोरम और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप, हम सब मिलके ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये कर रहे हैं। आपसे अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएं और कश्मीरी बहन भाइयों को सपोर्ट करें और एक स्ट्रॉन्ग पैगाम भेजें कि मोदी फैशिस्ट, ये जो नाज़ीज़ के बिलीव करने वाले फैशिज्म, ये वो लोग हैं जो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं और इसको बंद होना चाहिए। कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। 15 अगस्त को ये ब्लैक डे के लिए आप तशरीफ़ लाएं। बरतानिया में सिखों की सबसे बड़ी तंजीम ने भी कश्मीर में हालिया भारतीय दरिंदगी को यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि भारत के टुकड़े होने का वक्त करीब आ चुका है। कश्मीर की आज़ादी के साथ साथ अब खालिस्तान भी आज़ाद होकर रहेगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मारूफ वकील JP पन्नू और दीगर सिख रहनुमाओं ने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बात की है। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में ह्यूमन राइट्स के मरूफ वकील पन्नू साहब मौजूद हैं, जो कि सिख फॉर जस्टिस जो है उसकी भी बड़ी कामयाब तहरीक चला रहे हैं। उसके अलावा जो खालिस्तान का रेफरेंडम है उसके भी ये रूह रवां हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो इस वक्त भारत ने हालिया जो कार्रवाई की है कश्मीर के अंदर, उस हवाले से ये क्या रखते हैं? जी क्या कहेंगे? देखो जी, इस वक्त what India has done is the annexation of Kashmir, and since 1947, from 1948 to 1957, there has been multiple resolutions in the United Nations, and India has agreed till they did this damage. India has agreed that Kashmir is a disputed property, और कश्मीर दे लोकां दा right to self determination जेड़ा हक है, the future of the Kashmir region would be determined by the Kashmiri people, not by Narendra Modi, not by BJP, not by Amit Shah. So what they have done is the damage to that particular resolution. So इसदा मतलब है कि India does not recognize the authority of the United Nations. That is the point. That's why we have filed a complaint with the United Nations against Narendra Modi and Amit Shah, seeking a peacekeeping force, as well as making sure that we press UN Secretary General to go ahead with a plebiscite on this matter, whether the people of the Kashmir want to stay with India or they want to be having an independent country. अच्छा, ये भी दसो कि इस वक्त इंडिया नूं ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? देखो, ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ
ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੌਇਸਿਸ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਦੇ ਫਾਲਟਡ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ, ਇਸ वक्त मेजॉरिटी है मुस्लिम्स, उन्होंने मिनॉरिटी बनाओगे। जी बिल्कुल, आपने जो है वो ह्यूमन राइट्स के जो इंटरनेशनल वकील हैं उनकी बात सुनी। अब दीगर सिख रहनुमाओं से भी इस सिलसिले में बात करती हैं कि वो कश्मीर में जो हालिया जो भारतीय कार्रवाई उस वाले से वो क्या राय रखते हैं। जी ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 1947 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ, 55 ਵਿੱਚ ਤੇ 57 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀति ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। लीड्स में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इंडियन हुकूमत के गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया। लीड्स सिविक हॉल में कश्मीरियों के हवाले से होने वाले इजलास में मेंबरान पार्लियामेंट, शैडो वजीर रिचर्ड बर्गन, फेबियन हैमिल्टन, काउंसलर्स, कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। तफसीलात बता रहे हैं लीड से आसिफ कुरैशी। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासबाना और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लीड्स में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। लीड्स सिविक हॉल में कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से खसूसी इजलास हुआ जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट, शैडो वजीर रिचर्ड बर्गन, फेबियन हैमिल्टन, काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इजलास का एहतमाम काउंसलर मोहम्मद रफ़ीक, काउंसलर मोहम्मद इकबाल, काउंसलर सलमा आरिफ, काउंसलर मोहम्मद आरिफ और काउंसलर गोहर अलमास की जानब से किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का फौरी नोटिस लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों को सर्द खाने से निकाल कर इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और कश्मीरी अवाम को उनका पैदाइशी हक के खुद इरादियत दिलवाने के लिए इंसानी हकूक की तंजीमें आगे बढ़े। इस मौके पर मुकर्रीन ने हिंदुस्तान की हुकूमत के गैर आईनी इकदाम को भी मुस्तरद कर दिया और बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हिंदुस्तान को पाबंद किया जाए कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और फौजी दस्ते वापस बुलाकर गैर कानूनी इकदाम को मुअत्तल करार दे। इस मौके पर मेंबरान पार्लियामेंट रिचर्ड बर्गन, फेबियन हैमिल्टन, एलेक्स सोहेल, साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी जुल्फकार अली, काउंसिल कम्युनिटी रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। Deeply concerned about the escalation by the government of India in India-occupied Kashmir. Not only has the special status of Kashmir been revoked by Modi's government, also they've sent more troops there to an area that's one of the most militarised on earth, and also more and more human rights abuses have occurred. I wrote to the Foreign Secretary, the new Foreign Secretary Dominic Raab, just 2 days ago when the news broke about Article 370 in the Indian Constitution and the isolation of Jammu and Kashmir. I wrote demanding that he not only put pressure on Prime Minister Modi and the President of India over this violation of the rights
of the people of Kashmir. About what the Indian government done, revoking Article 370 and the special status that Jammu Kashmir holds, and the fact that there appears to be a military crackdown in Jammu Kashmir, that the internet has been closed down, that communication channels have been closed down, that a curfew has been imposed. This is not the actions of a democratic government. This is actions of a despotic government. हर बंदे दा आपा अपनी जरूरतां हुंदी हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ. We are holding this event at Leeds Civic Hall to show our solidarity to Kashmiri brothers and sisters. The people of Kashmir have been sacrificing for over 70 years. It's injustices that are taking place, and the least we can do is to raise voices for the justice that the people of Kashmir deserve. So जो इंडियन हुकूमत ने जो फैसला किया है, बिल पास किया है, हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी बड़ी परेशान और गुस्से में और जज्बात में है कि बिल्कुल बड़ी तबाही की तरफ ये जो उन्होंने इकदाम उठाए तबाही की तरफ लेके जाएंगे. The situation in Kashmir is very tense. It's very disturbing, and it's worrisome. People don't know what's going on. They have been completely shut down. It's a big clampdown. All sources of communication are disrupted. I don't even know whether my parents have medicine for the next day. I don't even know whether they have water, because at one point it was being said that the water and electricity will also be shut. So my mother actually forced me to leave with my kids and my wife. It was an emotional goodbye. पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का कहना था कि भारत के गैर कानूनी गैर आईनी इकदामात की वापसी तक भारतीय हाई कमीशन लंदन और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा. बरतानिया में आबाद तारकीन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम ने इंडिया के इस गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया है और आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि कश्मीर की करारदादों पर अमल करके कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाई जाए. आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स. बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का. आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ. रूटीन में आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ और निहत्ते मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार के लिए एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और बंगाली कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई. मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की. तफसीलात सफ्दर बुखारी की इस रिपोर्ट में. मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने लुटन के मरकजी जामे मस्जिद से जुलूस निकाला, जो बरी पार्क से होता हुआ लुटन टाउन हॉल के बाहर इख्तिताम पजीर हुआ. जुलूस में पाकिस्तानी और कश्मीरी और बंगाली कम्युनिटी के हजारों अफराद ने शिरकत की और हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए. ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ. ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਜਿਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਸ सिलसिले की मजहब ना रंग ना दिता जाए, बल्कि इसके कश्मीरियत ना कश्मीरियानी इंसानी हकूक ने हवाले न तकिया जाए. The issue is, over the last 30 years, 70,000 people have died. Now, no armed forces can go in there, should go in there and injure and harm people. What we need is a good resolution which helps all the communities around there, and people have to work together. Now, one of the issues is we don't hate Indians, we don't dislike them, we want to live together with them, and it's important that we look at what their needs are and work together to have a resolution to stop future wars, future damages. दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को ज़्यादा देर तक महकूम, मजबूर और मजलूमी का शिकार नहीं कर सकती. इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ कश्मीर के अंदर आज़ादी के सूरज को तलू होना है और ये तलू होकर रहेगा. All of the Luton Kashmiris have gathered here, and actually not just Kashmiris, the extended community has gathered here in support of freeing Kashmir. The atrocity that's happening in Kashmir right now is really heartbreaking. The fact that we can have not got any contact with all of our brothers and sisters in the occupied Kashmir. We want Kashmir freed, and we want the brutal Indian forces to get out of Kashmir. Here today to strongly condemn the actions of India. The decision to revoke Article 35A of the Indian Constitution
It's a breach of human rights, an annexation of land that belongs to the Kashmiri people. And support for the Kashmiri people. We support their right of self-determination, and the injustices we're against. We condemn the behaviour of the Indian government, the barbaric and authoritarian measure which has taken place, and we are united in our response as you see today. जो मोदी ने ये बड़ा एक गलत इकदाम उठाया है उसके बारे में, और इंशाअल्लाह हम जितने भी कश्मीरी हैं, जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, चाहे वो अमेरिका में या बरतानिया में, हम सब इंशाअल्लाह इसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाएंगे। बहुत ही दुख की घड़ी है कि हमारी कश्मीर की बहनें और भाई और छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं और दुनिया खामोश है। मंजिल तेरा प्यारा प्यारा दिलकश तेरा हर नज़ारा, तू है जन्नत की तस्वीर है मेरे प्यारे कश्मीर, हर मुश्किल आसान करेंगे तुझ पे जान कुर्बान करेंगे, बदलेगी तेरी तकदीर है मेरे प्यारे कश्मीर। Modi is a terrorist and the country needs to realize that Kashmir needs to be freed and Modi needs to be stopped. पैगाम देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि मोदी सरकार, अगर तुम्हारी 7 लाख फौज भी कश्मीरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो तुम्हारी 30,000 फौज का हमारा बिगाड़ेगी। आप बरतानिया में और दुनिया के हर करिया में हर कश्मीरी अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। हम क्या चाहते? आज़ादी। लुटन की बेटियों ने, लुटन की माओं ने और लुटन के बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि हम उस कश्मीर में जो मोदी दहशतगर्द है वो एक दहशतगर्दी कर रहा है मुस्लिम कश्मीरियों पे, हम उन कश्मीरियों के साथ हैं। Give Kashmir its freedom. You can't kill children forever. इस मौके पर लुटन बार काउंसिल की लीडर ऑफ काउंसिल एहजल साइमन और मेयर ऑफ लुटन ताहिर महमूद मलिक को प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी, प्रोफेसर जफर खान, सैयद हुसैन, शबीर मलिक और दीगर ने याददाश्त भी पेश की। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के जवानों, माओ, बहनों की हर प्लेटफॉर्म पर मदद करते रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार ग्लासगो में कश्मीरियों की हिमायत में होने वाले खुसूसी हंगामी इजलास में मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मीर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में हंगामी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमने कश्मीर के लिए पहले भी 3 जंगें लड़ी हैं और अगर भारत हम पर एक और जंग मुसल्लत करता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं और ये जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कश्मीरी भारतीय फौज से अपना आज़ादी का हक छीन नहीं लेते। उन्होंने मजीद कहा, कश्मीर कश्मीरियों का है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं। हम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज्जत के लिए हर हद तक जाएंगे। हंगामी इजलास में मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट अनस सरवर, खुर्शीद अनवर खान, सुकलैन शाह, मोहम्मद शुएब एडवोकेट, चौधरी शबीर, चौधरी अब्दुल मजीद, खुर्शीद बुखारी, मोहम्मद सुल्तान अली, अहमद सूफी और दीगर मशहूर कश्मीरियों की हिमायत करने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। इजलास में हर तबका फिक्र के अफराद के अलावा खवातीन ने भी शिरकत की। इजलास बादज़ां जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया और सब ने मिलकर भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इजलास में ये फैसला किया गया कि कश्मीरियों के हक में मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। इंडियन एम्बेसी एडनबरा के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। इजलास के आखिर में कश्मीरियों की आज़ादी और सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में यहाँ के रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने मिलकर इस बात का यादा किया कि हम कश्मीरियों की, अपने बहन भाइयों की हर प्लेटफार्म पे, हर सतह पे हमायत जारी रखेंगे। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ब्रेडफोर्ड में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरे में हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों कश्मीरियों के अलावा दीगर कम्युनिटीज ने भी शिरकत की और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। तफसीलात के लिए देखिए वकार बाबर की ये रिपोर्ट। मौसम की शिद्दत के बावजूद कम्युनिटी मेंबरान, काउंसलर्स, मजहबी जमातों के रहनुमाओं के साथ साथ मर्दों, खवातीन, बच्चों और बूढ़ों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। इस एहतजाज में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटीज ने भी शिरकत की और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। शुरका का कहना था कि भारत का यकतरफा फैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता और इस फैसले के खिलाफ आलमी बरादरी को संजीदगी के साथ भारत पर दबाव डालना चाहिए। ब्रेडफोर्ड के लोगों ने, कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों ने, बल्कि सारी इंसानियत से दर्द रखने वाले लोगों ने आज यहाँ ये बताया है कि जब तक कश्मीर पे जुल्म होता रहेगा ये लोग बाहर निकलेंगे, जब तक ये जुल्म स्टॉप नहीं होता है। और इंशाल्लाह हम मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि जहाँ भी इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं, जब तक जुल्म खत्म नहीं होगा ये हमारी स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। मोदी, तू ये जान ले कि तू हमारे जज्बात,
हमारे एहसासात को नहीं रोक सकेगा और हम आज़ादी लेके रहेंगे। Pakistanis and Kashmiris in the UK are with our Kashmiri people in Kashmir. We're supporting them against the fascist government of Modi, and we pray that Allah gives them success quickly. Inshallah. You might think this is silly, but I had a vision that entire India became Pakistan. इस बारिश के मौसम के अंदर कश्मीरी जो है ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी और इंडिया तुम सुन लो, कितना जुल्म करोगे, कितना जबर करोगे। जुल्म जब बढ़ता है तो उसकी हद होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीरी ये अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इंडिया से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। Support the Kashmiris, us being Kashmiris overseas, we're going to do everything we can to make sure that they get justice, and we're going to boycott anything to do with India and Indian things until Modi doesn't remove his forces from Kashmir and gives freedom to our brothers and sisters there. उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी हमेशा की तरह कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और कश्मीर की आज़ादी तक खड़े रहेंगे। इंडिया की हट धर्मी और कश्मीर में ढाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ ब्रैडफोर्ड के अंदर बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नौजवानों ने ये साबित कर दिया और ये दुनिया को पैगाम दिया कि कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आइंदा आने वाले कल को भी हमारा ही रहेगा। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। फिनलैंड के जनूबी दारुल हुकूमत हेलसिंकी में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा हुआ, जिसमें फ्रंट के अहदेदारों, कारकुनों के अलावा कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने भारतीय हुकूमत से लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। इंडिया स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, इंडिया स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, कश्मीर वांट फ्रीडम, कश्मीर वांट फ्रीडम। यूरोपीय मुल्क फिनलैंड के शहर हेलसिंकी की फिजा भी भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। भारतीय फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूरोप जोन और फिनलैंड ब्रांच के ज़ेरे एहतमाम मुजाहिरा हुआ, जिसमें फ्रंट के अहदेदारों, कारकुनों के अलावा कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और कश्मीरियों से खुलकर इजहार यकजहती किया। इस मौके पर शुरका ने भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर शुरका ने मुजाहिरीन कश्मीर के वारिस जिंदा हैं, कश्मीर पर भारत का कब्जा नामंजूर, कश्मीर में कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, यासीन मलिक को रिहा करो, कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म सितम बंद करो के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। इंडिया स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, इंडिया स्टॉप किलिंग इन कश्मीर। कम्युनिटी रहनुमाओं और कश्मीरी तंजीमों के अहदेदारों ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है इस वक्त तक इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद करते रहेंगे। भारत बंदूक की नोक पर निहत्ते कश्मीरियों के हकूक गजब नहीं कर सकता। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मैदान अराफात में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज़मीन हज के चेहरे खिल उठे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी और दीगर आज़मीन ने खैमे से बाहर निकलकर बारिश तले मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। मैदान अरफात में मूसलाधार बारिश से आज़मीन की खुशी दुबाला हो गई। मौसम खुशगवार होने पर आज़मीन के चेहरे खिल उठे और वो खैमों से बाहर निकल आए। उस मौके पर पाकिस्तानी आज़मीन हज ने रब काबा के हुजूर गिड़गिड़ा कर कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, वज़ीर आज़म के मुशीर भी बारिश में खड़े होकर दुआएं मांगते रहे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।